Yesterday we have studied till eddy currents and today we will start solving the examples and NCERT questions. I will solve all the numeric NCERT questions which are in the syllabus and I will send you all the conceptual ones. You can solve the conceptual ones. If you have any problem in solving any of the conceptual example, then I will solve them in the later video. So we will start with our first example is example 6.2. Now in this example it is being given that a square loop of side 10 centimeter. The side of the square loop is 10 centimeter is placed vertically in east-west plane. This is the east-west plane. A square loop of side 10 centimeter is placed vertically in this plane. This is north, east, south and west. A square loop is placed vertically in the east-west plane. A uniform magnetic field of magnitude 0.10 Tesla. Here magnetic field is given as 0.10 Tesla and this magnetic field is in northeast direction. This is the northeast direction. This is the direction of the magnetic field. Now the magnetic field is decreased to 0. Now जो magnetic field है 0.10 Tesla is decreased to 0 in 0.70 second. 0.70 second में जो हमारी magnetic field थी, it is decreased from the value 0.10 to 0. Determine the magnitude of induced EMF and current during this time interval. हमने निकालना क्या है कि ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल ड्यूरिंग 0.70 सेकेंड जब जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज्ड फ्रॉम 0.10 टेस्ला टू 0, व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड व्हाट इज द इंड्यूस्ड करंट. अब सबसे पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा क्या होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम. तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स. अब फाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, बी A cos theta. This is the value for phi. अब B की वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ पे साइड गिवन है, तो एरिया कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. और सेंटीमीटर स्क्वायर को आप मीटर में स्क्वायर में चेंज कर लेना, ठीक है. तो वो आपका एरिया आ जाएगा. थीटा की वैल्यू यहाँ आपको गिवन है 45 डिग्री. सो व्हेन यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ phi, the value of phi will come out to be 0.1 into 10 raised to power minus 2 upon under root 2 Weber. This will be your magnetic flux. This is the initial magnetic flux when the magnetic field is 0.10 Tesla. अब जो final magnetic field है that is 0. तो B की वैल्यू 0 है, तो जो final magnetic flux आएगा that will be equal to 0. तो जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है इट इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी. डेल्टा फाई की वैल्यू ये सेम आ जाएगी एंड डेल्टा टी इज गिवन एज 0.7. यू कैन डिवाइड इट एंड व्हेन यू डिवाइड इट द वैल्यू विल कम आउट टू बी 1.0 मिलीवोल्ट. दिस इज द वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ. और जब आपने इंड्यूस्ड करंट निकालना है तो इंड्यूस करंट की वैल्यू क्या होती है, I इज इक्वल टू E अपॉन R. और जो रेजिस्टेंस ऑफ द स्क्वायर है, स्क्वायर लूप है, वो क्वेश्चन में हमारी गिवन है. द रेजिस्टेंस इज 0.5 ओम. E की वैल्यू ये पुट कर दोगे, रेजिस्टेंस 0.5 ओम पुट कर दोगे, देन यू विल गेट द आंसर एज 2 मिली एम्पियर. So this will be the answer for the induced EMF and this will be the answer for the induced current after solving.
going to do example 6.3. Now in this example, a circular coil of radius 10 centimeter and number of turns 500 is and resistance 2 ohm is placed with its plane perpendicular to the horizontal component of Earth's magnetic field. It is rotated about its vertical diameter through 180 डिग्री, जो आपका इनिशियल एंगल है इट इज 0 डिग्री, एंड जो आपका फाइनल एंगल है सॉरी थीटा, जो आपका फाइनल एंगल है दैट इज गिवन एज 180 डिग्री इन 0.25 सेकेंड, और जो टाइम है जिसमें ये चेंज हुआ है दैट इज 0.25 सेकेंड, एंड the horizontal component of Earth's magnetic field at that place is B is equal to 3 into 10 raised to power -5 टेस्ला. अब आपको इसमें क्या निकालना है? You have to calculate the induced EMF and induced current. यहाँ पे जो induced EMF है उसका फॉर्मूला होगा E is equal to N d phi डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी. और डेल्टा फाई आप कैसे निकालोगे? डेल्टा फाई विल बी डेल्टा फाई जो आपका इनिशियल आएगा माइनस डेल्टा फाई जो आपका फाइनल आएगा, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा फाई. अब जो डेल्टा फाई इनिशियल है उसकी वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे? फॉर्मूला वही है बी ए कॉस थीटा. और सर्कल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. यहाँ से आपका एरिया आ जाएगा. b की वैल्यू आपकी गिवन है. इनिशियल में पुट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, cos 0 इज 1, एंड फाइनल में पुट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, cos 180 इज -1. जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपकी डेल्टा फाई की वैल्यू जो चेंज आ जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स में दैट विल कम आउट टू बी 6 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर. उसके बाद आपको क्या निकालना है? E. यहाँ पे n की वैल्यू पुट करोगे डेल्टा फाई की, और डेल्टा टी जो आपका चेंज इन टाइम है दैट इज 0.25 सेकेंड. ये सब्स्टिट्यूट करके यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF एज 3.8 इंटू 10⁻³ वोल्ट. ये आपकी E की वैल्यू आ गई. तो I की वैल्यू क्या आएगी? E अपॉन R. R आपका गिवन है 2 ओम. जब आप इसको डिवाइड कर दोगे ऑब्वियसली यू विल गेट 1.9 into 10⁻³ ampere. Now we are going to do question 6.3 of your NCERT. अब इसमें क्या है? इसमें एक सोलेनॉइड है which is having 15 turns per centimeter length, and so अगर सेंटीमीटर लेंथ में हमारी 15 टर्न्स है तो पर मीटर लेंथ में द नंबर ऑफ टर्न्स विल बी 1500. और इस सोलेनॉइड में there is we have placed a loop having area as 2 centimeter square. तो एरिया कितना है हमारा? 2 centimeter square, और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 into 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर. अब जब सोलेनॉइड में करंट चेंज होगा तो जो हमने अंदर लूप रखी है ऑफ एरिया 2 into 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, उसमें कुछ इंड्यूस्ड होगा, EMF इंड्यूस्ड होगा. हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ दैट इंड्यूस्ड EMF when current in the solenoid changes from 4 ampere to 2 ampere, and the time in which this current change occurs is 0.1 second. Now first of all we know that induced EMF is equal to d phi upon dt. So value of phi will be equal to B into A. और अगर हमारी B is the magnetic field and we know that due to the solenoid the magnetic field is μ0 n I, और यहाँ पे I क्या आएगा हमारा? the change, जितना हमारा वो हुआ change in the current हुआ that will be taken as I. when you will substitute all the values here we will have E is equal to d phi upon dt. E is equal to, instead of phi we will put here we will have n because we have number of turns, we have n
d upon dt of बी ए, ठीक है। अब जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट एन आई, एरिया इज कांस्टेंट, इट विल कम आउट ऑफ द इंटीग्रेशन। हमारा जो है चेंजिंग है, किसमें चेंज हो रहा है, सिर्फ करंट में, डी आई अपॉन डी टी, एंड जो हमारा चेंज इन करंट है वो हमारा क्या है, डी आई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 4 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर, दैट इज 2 एम्पियर, और dt की वैल्यू हमें गिवन है 0.1 सेकेंड, n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो 1500, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो 2 into 10 raised to minus 4, एंड म्यू नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 4 पाई into 10 raised to minus 7, म्यू नॉट will be 4 pi into 10 raised to minus 7. When you will substitute all the values, you will get the value of induced EMF as 7.54 into 10 raised to power minus 6 volt. This will be the value of induced EMF after substituting all the values. Okay, students.